Okay, can you hear me right now? Students? Okay, fine. Okay. So basically, we are starting with a new chapter. Not new chapter. We have already done a. Okay. The name of this chapter is study of the gas laws. तो basically ये chapters में ना सिर्फ 3 ही law है. ये chapter सिर्फ आपको numerical base के हिसाब से करना है. Numerical base, not theoretical base. तो आपको क्या क्या laws याद रखने हैं? पहले है Boyle's law. Okay. फिर है चार्ल्स लॉ और ये है थर्ड आइडल गैस इक्वेशन. अभी बॉयल्स लॉ, अभी देखो बेसिकली मैंने आपको ये सब वीडियो पॉइंट में कवर करवा दिया है. मैं थोड़ा फास्ट ले सकता हूँ लेक्चर्स क्योंकि आपको सब बेसिक्स फॉर्मूले आने चाहिए. ओके, बिफोर वाचिंग ऑफ द वीडियो मेक श्योर दैट यू हैव वॉच्ड द प्रीवियस वीडियोस ऑफ माइन व्हिच हैव बीन ऑलरेडी शेयर्ड ऑफ द लॉ. बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर. क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. ठीक है, तो बेसिकली हमने कैसे पढ़ा था? टीबी एक बीमारी जैसे ट्यूबरक्लोसिस. टीबी स्टैंड्स फॉर ट्यूबरक्लोसिस. तो टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर एंड बी स्टैंड्स फॉर बॉयल्स लॉ. तो in Boyle's law you have to make it sure that the temperature would be constant. Now what would be the formula? That will be P1 V1 equals to P2 V2. This was the first law. Okay. Now the second law is regarding the pressure constant. Okay, in this the pressure should be constant. Now how to determine that part? PC, where PC stands for kind of Priyanka Chopra. Okay, PC stands for Priyanka Chopra. In the, we can't see board here. Okay. Okay. Okay, just wait. Some of the students can't see the board clearly, so I hold it the lecture. We are only the video is blurred. कुछ चेंज नहीं किया जैसा है वैसे. नहीं वो अपने इंटरनेट में फोन जिसमें नेटवर्क है उसमें थोड़ा. जियो ही है. हाँ जियो ही है ना. जियो. हाँ. रिसीव डायरेक्ट फाइनल जरूर. हाँ. लेक्चर ले लिया. Is it clear now? Just see.
उनकी फाइनल एग्जाम See, there is some network issue. So what I'll do is I'll record the lecture. I'll ask sir to record the lecture and I'll send it in the group in 1 hour. By 7:30, I'll send the lecture in the group. So see the recorded lecture there. Okay. You can leave the meeting now. I'll send the video in the group. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग किधर थे? चार्ल्स लॉ पे थे। तो चार्ल्स लॉ ने क्या बताया था कि वाई सी 3 वेरिएबल्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ ने बताया था कि प्रेशर शुड बी कांस्टेंट एंड हाउ वी शुड रिमेंबर टीसी, प्रियंका चोपड़ा। ओके, सो इट बिकम्स वेरी इजी, राइट? ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स, if any of the students get confused between a Boyle law or a Charles law, so he should be very much aware about these shortcuts. TB means tuberculosis, okay, where T stands for temperature and B stands for Boyle's, where PC stands for pressure related to charge. Okay, now what would be the formula? V1 upon T1, V2 upon T2. What does this symbolize? This symbolize that this volume upon temperature. And what does 1 means? 1 means the initial volume. Okay, V1 का मतलब होता है initial volume. Okay, in the start, initial volume, where T1 stands for initial temperature. So what is V2? V2 stands for final volume. Okay, and T2 stands for final temperature. See, whenever we start off any of the experiments in chemistry, so first we take up the basic reading, so that is why it is called as the initial part. But after the experiment has been completed, we come to the conclusion, so it becomes the V2 then. Okay, now
Ideal gas equation, what does ideal gas equation says? See, basically what is ideal gas equation? It is nothing but the clubbing up of the two different laws. One is the Boyle's law and the Charles law. See, during Boyle's law, the temperature was constant, but during Charles law, the pressure was constant. But now, as we are doing up the ideal gas condition, okay, ideal gas equation I am going to say, in this, none of the variables would be constant. Okay, now, why the none of the why no variables are constant? Because in each of the cases we have kept something as the constant, okay, but in this factors we don't have to keep anything constant. So that is why the formula derived is P1 V1 upon T1. So if you notice Boyle's law first, so what is the formula? P1 V1, okay, so you just have to club it up. And here in Charles law, what I have written, divide by T1 na? So here also simply you have to divide it by T1. So it is nothing but basically the clubbing up of two different laws. Okay, these are the three different formulas we are going to use. The chapter is completely based on these formulas only. As I already made it sure that this is basically a practical chapter, not the theoretical chapter. So I am erasing this part for you. Few sums I am going to do right now. Okay, not all of the sums I am going to do. So I am making it very clear. Only few sums I am going to do on the board because only three formulas. Okay, and rest of the things will be remain the same. See. Now, first regarding the volume. Volume हम कैसे express कर सकते देखते हैं. 1 liter equal to how many ml? 1000 ml. How many centimeter cube? 1000 centimeter cube. And how many meter cubes? 1 meter cube. Okay, तो basically हम लोग वॉल्यूम को किस किस यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं? लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब्स एंड मीटर क्यूब्स. But these are the values while using them. Then second, temperature. Temperature will be measured in degree Celsius or Kelvin. Okay, so just remember this simple part. While converting degree Celsius to Kelvin, make sure you have to plus it up to 73. But while measuring from Kelvin to degree Celsius, it would be the reverse of this part. That is negative 273. Okay, so we could get the answer. Suppose an example to make you understand. Suppose मेरे को किसी 7 degree Celsius दिया है, and someone said me to convert into Kelvin. So what I am going to do? If I have to convert my degree Celsius into Kelvin, so simply I just have to add 273 to this part. So what I am going to do? 273, 280 K, not degree K. Okay, ये डिग्री के में नहीं आएगा, ये डिग्री में मेजर नहीं होगा, ये सिर्फ इसका नॉर्मल के रहेगा. इफ इट वुड बी टेम्परेचर, तो डेफिनेटली यू हैव टू पुट द डिग्री सेल्सियस देयर. नाउ दिस इज एन एग्जांपल. ओके, वन मोर प्रेशर रह गया. प्रेशर आप लोग ने थोड़ा ज्योग्राफी में भी पढ़ा रहेगा और थोड़ा फिजिक्स में भी. ये 760 mm of Hg, मिलीमीटर ऑफ Hg, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 10 कर दो इसको ही. 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, क्योंकि मर्क्यूरी में मेजर होता है. एटमॉस्फेयर में बात करें तो 180 m. एक कंसाइज का सम है, उसमें बार दिया है, बार, तो 1 बार. तो ये 4 यूनिट्स हो गए. सबसे ज्यादा प्रेफरेबल होगा 760 mm of Hg, सबसे ज्यादा. ओके, 76 सेंटीमीटर, 180 m, 1 बार. ओके, दिस वुड बी द 4 units, but most preferable this. And always remember one part. See, whenever they are giving the questions in the temperature, make sure you have to convert it to Kelvin. याद रखना, Kelvin में कन्वर्ट करना, क्योंकि Kelvin में अगर कन्वर्ट नहीं करोगे तो सबके आंसर्स रॉन्ग ही मिलेंगे आपको फाइनल एग्जाम्स में. तो ऑलवेज मेक इट श्योर कि यू हैव टू कन्वर्ट योर डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन. तो दिस वुड बी मोस्ट प्रेफरेबल. ओके, और इधर से क्या प्रेफरेबल रहेगा? ज्यादा से ज्यादा 1000 ml, और लीटर्स में सबसे ज्यादा रहेगा सम्स. ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस पार्ट फॉर यू.
So basically, we are doing from concise. We are doing this sums because in frank some of the sums are incorrect also, and at the same period of a time there are very sufficient amount of sums. But in concise there are a lot of sums, so you can get a lot of practice also. So exercise 7 we are doing from concise. The first sum. Okay, only few picked. I'm going to pick up few sums only. Not all of them I'm going to do. Okay, what will be the minimum pressure required to compress 500 dm cube of air at 1 bar to 200 dm टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट. तो अभी आपको ये सब दिया हुआ है. डीएम क्यूब के बारे में तो आप लोग ने इसमें भी सीखा रहेगा वॉल्यूम्स में. ओके, फिजिक्स में भी ये वर्ड तो सुना ही रहेगा. व्हाट डीएम स्टैंड्स फॉर डेसीमीटर. ओके, तो इट हैज बीन ऑलरेडी गिवन टू यू कि द वॉल्यूम इज हाउ मच 500 dm cube. What is volume 2? 200 dm cube. They have given that the pressure is 1 bar. Pressure 1 is 1 bar. Now you have to find the pressure 2 then. And they have already clearly mentioned that the temperature is remaining constant. So what does temperature constant says? Which laws it indicates? It indicates Boyle's law. Why? Because I have already given you the shortcut of TB. Okay, so this is a very basic one. So before starting off any of the sum, see to it that you write the law and then move ahead, because without writing of the law you won't be coming to the conclusion then according to Boyle's law. So what would be the formula then? P1 P1 P2 V2. See, so 500 into 1, 200 into P2. What I am going to do? This 200 is going to come down. 0 0. Okay. अभी 2.5 क्या? What would be the unit? तो look in the sum only. You can easily understand. मेरा sum ये बार में था, तो common sense की बात है कि इसका जो P2 का आंसर आएगा, it has to remain in bar only then. Okay, तो it depends कि पहला वाला पार्ट क्या था आपका. जो पहले वाले पार्ट के यूनिट्स रह गए, वही जो आंसर आपको डिराइव भी हो जाते हैं, तो वही यूनिट्स रहने चाहिए. तो आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर. चलो, आई एम इरेजिंग दिस पार्ट. Now what would be the next sum? Okay, suppose I am doing the right now I am doing the fourth one. They have written 800 cm cube. मतलब ये क्या दे रहे हैं? वॉल्यूम दे रहे हैं आपको. मैंने आपको पहले ही बोला था कि वॉल्यूम के यूनिट्स लीटर्स, मिलीलीटर्स, सेंटीमीटर क्यूब्स, डेसीमीटर क्यूब्स, ये सब होता है. तो वॉल्यूम का ये दिया हुआ है आपको. फोर्थ वाला सम है ये. तो इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, तो ये फोर्थ वाला सम है. तो 800 cm is collected at 654 mm pressure. तो this is also clearly mentioned that the pressure is 654 mm of Hg, और वो सब लिख लेना. Then next, what they are given? What pressure? Okay, what pressure would the volume of the gas reduced by 40% of the original. अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो वॉल्यूम 2 है वो रिड्यूस होने वाला है. यू हैव टू फाइंड द प्रेशर. ओके, आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर फॉर यू. यू हैव टू फाइंड P2. दे हैव क्लियरली मेंशन्ड कि व्हाट वुड बी द प्रेशर, बट दे हैव रिटन वन थिंग फॉर यू. दे हैव रिटन कि योर वॉल्यूम, ओके, द वॉल्यूम इज गेटिंग डिक्रीज बाय 40%. अभी यूजुअली क्या होता है, देखो, अगर मैं एग्जांपल लूं, एक स्टूडेंट को 100 मार्क्स आए, ओके, और दूसरे स्टूडेंट्स को उससे 20% कम आए, तो दिस इज द फर्स्ट स्टूडेंट मार्क्स. तो व्हाट वुड बी द सेकंड स्टूडेंट मार्क? इट हैज टू बी 80. तो आपने कैसे लाया ये 80 में आंसर? क्या किया आपने? कितने से कम आया? 20% ना. तो आपने पहले 20 ऑफ 100 निकाला, तो कितने मार्क्स हो गए? 20 मार्क्स हो गए. इसके ओरिजिनल मार्क कितने थे? 100. कितने रिड्यूस करने के थे? ओके, देन यू
लेकिन आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो समझ सकते हो ना कि सपोज जैसे कि मेरा आंसर इधर 80 आ चुका है, बट आप ऐसे भी तो समझ सकते हो ना कि एक स्टूडेंट को 20% कम आए तो दूसरे स्टूडेंट का मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि उसने सामने वाले का 80% स्कोर किया है. It could be a possibility then. It's like if I do have the 5 pieces of chocolate. Out of that, I've eaten 2, so I'm striking it off. So what would be the leftover part then? 3. Obviously, how you got this answer as 3? Because आपने क्या किया? Total था आपके पास 5. Out of that, you have subtracted the eaten part. So leftover would be the the leftover answer, that is 3, is the part which is still left, have not been eaten right now. So same like that, अगर suppose मैं मान के चलूं this volume was 800 and they have said this volume is going to get decreased by 40%. तो आप है ना ये V2 को है ना दो इक्वेशन में बना सकते हैं. मैं आपको दोनों मेथड सिखा दूंगा. This is 800, okay, minus 40% of total. What would be the answer then? 480 cm3. This is one of the way to find volume. What would be the alternative method then? I can assume like this कि this volume 2, देखो ये बोल रहा है वॉल्यूम 2 इज 40% लेस देन V1, तो वॉल्यूम 40% कम है ना, तो वो एग्जैक्ट कितना परसेंट हो गया? 60%. तो आई कैन रिमूव लाइक दिस आल्सो 60% of 480. Now also you, sorry, not 480, it is 800. Now also you got 480 cm. तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, either you do like this or alternative method, okay, because 40% कम है ना, तो मतलब 60% का आंसर निकाला आपने. ठीक है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं. तो आई गॉट माय वॉल्यूम एज 480 cm3 for now. What I am going to do, just I am going to use which law? See, in the question they have already mentioned that the temperature is remaining constant. But अगर कॉमन सेंस की बात लगाते हैं, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं दिया है, अगर आपको दो ही वेरिएबल्स दिया है, तो इसका मतलब कोई तो चीज कांस्टेंट है, तो वो चीज कांस्टेंट थी आपका टेम्परेचर. नाउ व्हाट वुड बी द फॉर्मूला? P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. सपोज जो भी आंसर आएगा, व्हाट वुड बी द यूनिट्स? Millimeter of vegetation. Okay, it would be millimeter only. Why it is millimeter? Because the initial millimeter में रखा था, तो final भी millimeter में रहना चाहिए. Okay, now we are doing the see. मैं आपको है ना और एक समझाने से पहले एक बता देता हूँ कि एक STP कंडीशन का मतलब क्या होता है. What does STP stands for? STP आता है या स्लैश NTP भी आ सकता है कभी कभी पेपर्स में. तो STP stands for standard temperature pressure, और you can also called it as a normal temperature pressure. Standard temperature pressure या normal temperature pressure. अभी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब क्या होता है मालूम है? कि आपको जो ये टेम्परेचर है ना, वो एक फिक्स लेना है. अगर नहीं दिया है तो मेक इट अ हैबिट ऑफ टेकिंग इट 273 केल्विन. एंड व्हाट वुड बी द प्रेशर? मैंने जैसे कि आपको ज्यादा से बोला था कि मोस्ट प्रेफरेबल 760 mm लेने का. ओके, तो STP and NTP stands for the same, standard temperature pressure or normal temperature pressure. If the units of the temperature and the pressures are not given, take this two variables, 273 K for in respect of temperature and 760 mm in respect of pressure. Now we are going to solve
eighth one. See, in eighth one, what they have given. Okay, they have given that 88 centimeter cube of nitrogen is present. So definitely they are talking about the volume first. At 770 mm. Then they have given if the pressure is raised to, मतलब प्रेशर बढ़ गया और जाके कितना हो गया 880 mm. Find by how much the volume will diminish and the temperature would remain the constant. So what you have to find V2. But exactly मैं आपसे बात करूँ कि आपको इस क्वेश्चन में V2 भी नहीं ढूंढना है. You have to find something different out of this part. ये क्वेश्चन का मतलब क्या मालूम है कि initial volume was this, okay, and you have to find कि how much volume was diminished. Diminish का मतलब क्या होता है कि खत्म हो गया तो बचा कितना. ओके, इट्स लाइक अगर आपके पास एक बकेट है, ओके, एक बास्केट है, उसमें 100 चॉकलेट्स खा रखे हुए हैं. अगर वो 100 चॉकलेट्स में से अगर मैं 60 खा लेता हूँ या 60 बांट देता हूँ चैरिटी में, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ चॉकलेट्स लेफ्ट? 40. दैट्स वेरी ऑब्वियस. तो आपने ये क्या किया कि 100 चॉकलेट्स वर देयर एंड आउट ऑफ दैट द पार्ट व्हिच यू हैव डोनेटेड, चैरिटी दिया है, तो आपने सिर्फ लेफ्ट ओवर का आंसर ढूंढा. तो हमको भी इधर है ना जो वॉल्यूम ढूंढना है, इट इज लेफ्ट ओवर. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज कि आपको V2 ढूंढना है. V2 नहीं ढूंढना है, मैं अभी आपको क्लियर बोल रहा हूँ. लेकिन V2 ढूंढना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपको V2 मिलेगा तो ही तो आप सबट्रैक्ट कर पाओगे, नहीं तो आप सबट्रैक्ट नहीं कर पाओगे. तो बेसिकली व्हाट वी शुड डू, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ 88 770 880 V2. Now what we are going to do, 88 770 880 V2, 0 0 cut, 81 81 cut. What is the V2 then? 77 centimeter cube. But as I already mentioned कि this is not the final answer. They said कि find by how much the volume will diminish. Okay, तो आपका जो वॉल्यूम था इनिशियली में कितना था 88. Now what the volume was left in the container, it was around 77. तो ये दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो इसका मतलब मेरा वॉल्यूम डिमिनिश मिल जाएगा मेरे को, दैट इज अराउंड 11 cm3. ओके, आप अज्यूम कर सकते हो कि ये था कंटेनर. ओके, और ये कंटेनर का साइज, मतलब कंटेनर का साइज चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. मैं सिर्फ आपको एक एनिमेटेड फॉर्म बता रहा हूं कि इधर 88 था, ये बॉक्स अभी 77 का है, तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में 88 है और बाद में 77 हुआ, तो कॉमन सेंस की बात है ये सेकंड बॉक्स जो था 77 वाला वो कम तो हुआ है, बट कितने से हुआ? 11 से कम. ओके, डाउट? Now we are going to do the fifth sum. A cylinder of 20 liter capacity. Fifth. liter contains this 100 atm. So pressure is 100 atm. Atmospheric pressure को you can write it in a shortcut atm. No worries. So this information was related to cylinder. Now the other information is also given to you. The other information is related to flask. So make the second part as the part. Okay, the volume has been given to you, that is around 200, and the pressure one is 1 atm. Okay, and the temperature remaining constant. बट आपको क्वेश्चन में क्या ढूंढना मालूम है? फाइंड द नंबर ऑफ फ्लास्क. अभी यूजुअली जो भी सम्स होते हैं ना वो 3 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर. बट अगर आप नोटिस करोगे और थोड़ा सा दिमाग चलाओगे, आपका टेम्परेचर अगर मैं बोल रहा हूँ कांस्टेंट है और आपको मैं सारे वैल्यूज दे रहा हूँ, तो कुछ ढूंढना बचेगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि 3 वेरिएबल्स पे ही सम होने वाले हैं और कोई चौथा वेरिएबल्स नहीं होता इसमें.
तो उसमें से 2 तो मैंने दे दिए और मैंने थर्ड का हिंट दे दिया कि वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब ये थर्ड फैक्टर तो उड़ ही गया और ये 2 फैक्टर पे सम बचा, लेकिन ये 2 फैक्टर्स तो है हमारे पास दोनों साइड पे। लेकिन आप नोटिस करो one of the shape is cylinder and the other is the flask. ये सिलेंडर है और सिलेंडर का साइज थोड़ा बड़ा बना रहा हूं। क्यों बड़ा बना रहा हूं? बिकॉज दिस इज 20 लीटर, तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी बिगर। एंड फ्लास्क, दिस वुड बी अ फ्लास्क देन, एंड दिस आर वेरी स्मॉल। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये फ्लास्क लेके इसमें गैस पोर करते रहेंगे, ठीक है? ये फ्लास्क लेके इसमें गैस पोर करेंगे। तो ऐसे कितने फ्लास्क हमको ढूंढने कि कितने फ्लास्क, यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ फ्लास्क, हाउ मेनी फ्लास्क वुड बी रिक्वायर्ड टू फिल दिस होल सिलेंडर। आपको समझ गया? तो ये मैंने लिया, इसमें एक बार फिल किया, 2 बार 3 बार, तो ऐसे मैंने कितनी बार किया फिल, तो ये हमको ढूंढना है। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू फाइंड इज नंबर ऑफ फ्लास्क। Number of flask. Now, as you have to find the number of flask, so what I am going to do first? See, आपको क्या ढूंढना है? फ्लास्क ढूंढना है, लेकिन मैं सम स्टार्ट नहीं करूंगा, बिकॉज इफ यू नोटिस वेरी परफेक्टली और केयरफुली, one of the volume is not in a proper form. One is in liter and the other one is in the centimeter cubes. So what I am going to do, I am going to use my basic concept कि 1 liter could be equals to 1000 centimeter cube। तो सिलेंडर का अगर मैं चेंज कर देता हूँ, सिलेंडर साइड का मैं वॉल्यूम चेंज करके V1 चेंज कर देता हूँ, तो दैट इज 20 लीटर। ओके, और मैंने आपको ये बेसिक्स बता दिया, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, 20 into 1000, so what would be the volume now? 20,000 centimeter cube. See, I have converted my units properly. Here also the perfectly united, इधर भी है और इधर भी है। Now what you have to find? You have to find the number of flasks. This was the basic conversion. Now I am going to start off with the sums. So as we have already mentioned, what do you have to find? Number of flasks, which is equals to volume, okay, cylinder related informations and flask related information। क्योंकि देखो, जो भी चीज आपको ढूंढना है मैथमेटिकल में, फ्लास्क का आंसर ढूंढना है तो डिवाइडेड बाय फ्लास्क, सिलेंडर का आंसर ढूंढना रहता तो डिवाइडेड बाय सिलेंडर। अगर इधर पूछा रहता नंबर ऑफ सिलेंडर सपोज, तो मैं क्या करता, रिवर्स कर देता, फ्लास्क ऊपर रखता और सिलेंडर नीचे रखता, ठीक है? अभी see, temperature is constant, again Boyle's law, you have to mention that part on the very top. Right now I am not going to write because I have already mentioned in the very start that you have to write in each and every part of it. So this is P1 V1, P2 V2. Now this is 20,000 as we have already converted, 100 ATM divided by 200 multiplied by 1. Now zeros I am going to cut, 2 ones are 2, 10s are 1 2 3, so we can see how many flasks we need required to fill that whole cylinder, that is around 10,000 flasks. Okay, right now I am doing the question number 9 for you then. A gas at 240 Kelvin, मतलब एक कॉमन सेंस की बात है कि टेम्परेचर हैज बीन ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू केल्विन, राइट नाउ यू डोंट हैव टू कन्वर्ट इट, ऑलरेडी बीन कन्वर्टेड, एंड दे हैव सेड दैट द टेम्परेचर 2 is 127 degrees Celsius. So I have already made you very sure in the very start कि while any of the sums are in degree Celsius, first convert into Kelvin by simply adding 273 to this part. So what would be the new one? It is around 400 Kelvin.
Okay. Now they are said कि we have to find the percentage change in the volume of pressure. Percentage के terms में change ढूंढना है. Percentage के terms में change ढूंढना है. मतलब आपको सिर्फ ये दो information ही दी है और कोई information खास कुछ दी नहीं है. और उन्होंने बोला है कि pressure एक brackets में लिखा है pressure remaining constant. तो pressure remaining constant है तो मतलब लेकिन देखो आपको तीन वेरिएबल्स में से एक टेम्परेचर का इफेक्ट आपको मालूम है, ठीक है. आपको बोला गया है प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं इसको भी हटा देता हूं. वॉल्यूम, बट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वॉल्यूम हैज नॉट बीन क्लियर. तो व्हाट वी शुड डू नाउ? ओके, तो एज दे हैव सेड कि टेक इन रिस्पेक्ट ऑफ परसेंटेज. ओके, फाइंड द परसेंटेज चेंज, राइट. तो लेट अज्यूम इट एज 100. okay, what he basically does in maths also at the same period of a time. When any of the informations are not given, let this number be 100. So at the same period of a time when the volume has not been given, so I took it as 100. Why I took 100 only? The reason is very simple, because they have asked us in the terms of percentage, and percentage are always denoted by 100. So it's better to take it 100 only. You could have took 1000 also, but क्या फायदा, वापस से कन्वर्ट करना पड़ता. उससे अच्छा 100 में रख के सम स्ट्रेट कर दो. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड इज, आप 100 लीटर्स रखो, कुछ भी रखो, वो चल जाएगा. हमको कुछ भी रखो, आपको V2 ढूंढना है. तो ये देखो प्रेशर कांस्टेंट है. नाउ द लॉज विल बी चेंज. नाउ अकॉर्डिंग टू चार्ज, now what I am going to do, I am going to cross multiply this. 100, 400, 240, V2, 0, 0 cancel, 6 are 10 are 3 are, sorry 5 are 3 are. Now this is 500 divided by, okay, 500 divided by 3. If you divide this part, so you will get as 166.67 लीटर. सपोज मैंने इसको लीटर में रखा हुआ था, तो हम लोग भी इसको ऐसे ही अज्यूम करेंगे. बट राइट नाउ ऑल्सो इफ यू नोटिस कि मेरे को मेरा कंप्लीट आंसर नहीं मिला, बिकॉज द क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग द परसेंटेज. ओके, नाउ द परसेंटेज इज वेरी इजी. व्हाट वी हैव टू डू, तो राइट नाउ आई एम राइटिंग आउट हियर कि व्हाट वाज द वॉल्यूम 1. ओके, तो बेसिकली आपको किसका परसेंटेज ढूंढना है? वॉल्यूम का परसेंटेज ढूंढना है, राइट. तो आप क्या करोगे, पहले चेंज ढूंढ लेते हैं. तो चेंज क्या होगा, V2 माइनस V1. तो आपका चेंज आ गया. कितने लीटर का चेंज आया? इतने लीटर का, 66.67. नाउ आपको क्या ढूंढना है? तो मैं आपको एक इजी बताता हूँ, ये फॉर्मेट याद रखो. Change upon OG into 100. What was the change? 66.67. What was the original? ओरिजिनल मतलब क्या, जो मैंने स्टार्ट में लिया था उसको ओरिजिनल बोलते हैं. ओरिजिनल जैसे कोई चीज होती नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ जो इनिशियल होता है वो ही ओजी होता है. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, कैंसिल इट. नाउ आई गॉट माय परसेंटेज ऑफ दिस. ओके, कॉपी इट. Now new sum we are going to do. Let's do the 15th sum. लिखा है what temperature would be necessary to double the volume of a gas. तो what I am going to do, I am going to assume my volume as first 100. तो ये मैं डबल कर पाऊंगा, राइट. क्योंकि अगर 100 नहीं लूंगा तो मैं डबल भी नहीं कर पाऊंगा. क्योंकि अगर कोई भी मैथ्स में आपको एक सिंपल इंटरेस्ट वाला चैप्टर, वो बोलते हैं कि मैं
कुछ तो प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया, वो डबल हो गया 4 साल में, तो आप क्या करते हो, 100 लेके ही सम करते हो। ओके, they are given to double initially at STP। इनिशियली एट एसटीपी मतलब क्या, कि ये 273 केल्विन होगा, इसका जो प्रेशर होगा वो 760 mm होगा, क्योंकि मैंने आपको शायद से फिक्स्ड वैल्यू बोल दिया था वीडियो के स्टार्ट में भी कि ये एसटीपी अगर होगा तो यही वैल्यूज लेके चलना है आपको। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस टू 50%, रिड्यूस टू 50% का मतलब क्या है, 50% से कम हो गया, 50% से कम हो गया मतलब 50% निकालो डायरेक्ट इसका, 50% of 760 is 380, okay, 380 mm. Now you have to find okay, what is the temperature. Now it's very easy. Now which conditions we are going to apply? See in this, if you notice in this, उधर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट दिया है तो उसका मतलब क्या होता है मालूम है, वो दोनों बाजू में कांस्टेंट है, मतलब फर्स्ट इनिशियल में भी और फाइनल में भी, लेकिन ऐसा कुछ वर्ड नहीं दिया है, तो आपको क्या पकड़ना है, कौन सा इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन। नाउ व्हाट वुड बी द फॉर्मूला, P1 V1 P2 V2 T2, 100 760 273, sorry 200 380. Now see, now it's very obvious to do this sum. 100 ones are 100 twos are 1s are 2s are 2 ones are 2 ones are, ये तो स्ट्रेट कट हो गया, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो T2 का आंसर क्या आया 273 केल्विन, खत्म। डोंट कन्वर्ट इट इनटू डिग्री सेल्सियस, आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर, केल्विन में ही रखो सारे सम्स। I'm doing right now, I'm doing the 17th sum. उधर लिखा है 17 में, it is found on heating a gas, the volume is increased by 50%. Volume is increased by 50%, मतलब अगर suppose V1 I assume at 100, तो what would be the V2 then? इसको ही 50% से अगर मैं बढ़ा दूँ, तो it would have been 150 liter increased by, and the pressure decreased to 60% of original. Okay, if the original temperature was minus 15 degree Celsius, temperature 1 was minus 50 degree Celsius, तो मैंने क्या बोला होगा, plus 273 करना है, तो it would lead to 258 Kelvin. Okay, if the original, find the temperature, तो आपको बोला है T2 ढूंढ के बताना, उधर बोला है कि जो आपका प्रेशर है, ओके, जो आपका प्रेशर है द प्रेशर डिक्रीज टू 60% ऑफ ओरिजिनल, प्रेशर डिक्रीज टू 60% ऑफ ओरिजिनल। अगर सपोज आपको नहीं दिया रहता है, तो मैंने आपको प्रेशर का एक स्ट्रेट वैल्यू बताया था 760, व्हाट वुड बी द प्रेशर टू देन। अभी देखो थोड़ा वर्ड समझते हैं, उधर बोला है प्रेशर डिक्रीज टू 60% ऑफ ओरिजिनल, बाय नहीं बोला है, बाय करने के वक्त आप क्या करते हो, 60% उसमें से माइनस करते हो ना, ओके, इधर आपको 60% माइनस नहीं करना है, 60% ढूंढना है, क्योंकि 60 100 760 0 0 कट 6 4 36 45, ओके, ये mm में रखा है मैंने। अभी इसका मतलब समझते हैं 456 क्यों आया। देखो एक है ना वर्ड आता है डिक्रीज बाय, कभी भी याद रखना, और दूसरा वर्ड आएगा डिक्रीज टू, डिक्रीज इंक्रीज कुछ भी हो सकता है, सिर्फ ये बाय और टू का मतलब
डिक्रीज बाय का मतलब क्या होता मालूम है? 40% से कम हुआ, 40% से कम हुआ। और डिक्रीज टू मतलब क्या मालूम है? वो 40% कम हुआ। तो इसका मतलब क्या होता है दोनों से, कि अभी हम लोग का ओरिजिनल नंबर अगर इधर जैसे कि दिया था कि द प्रेशर वाज रिड्यूस्ड टू द सॉरी प्रेशर वाज डिक्रीज टू 60%, प्रेशर वाज डिक्रीज टू 60%, मतलब मेरे को 60% का डिक्रीज ढूंढना था। मतलब कितने से डिक्रीज हुआ था वो सब? 40% से। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन को अगर मैं फ्रेम कर दूं कि प्रेशर वाज डिक्रीज बाय 40%, ओके, तो प्रेशर वाज डिक्रीज बाय 40%, मतलब आप 60 की वैल्यू ढूंढते थे। और डिक्रीज 2 का मतलब क्या होता है मालूम है? कि अच्छा 60 तक हुआ है, जाके 60 तक हुआ है, मतलब 100 से स्टार्ट हुआ था और 60 तक उसकी वैल्यू आई है। तो इसका मतलब ये होता है डिक्रीज बाय और 2 में फर्क होता है। डिक्रीज बाय में हम लोग डिक्रीज करते हैं और डिक्रीज 2 में जो वैल्यू दिया रहता है ना उतना ही रखना है। सपोज इट वाज 40%, तो कीप इट एज 40% ओनली। एंड डिक्रीज बाय में क्या होता है कि 100 में से 40% पहले माइनस करो, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। ओके, now simply the calculation part, ideal gas equation, just put and you can solve it. 100, 760, 258, 150, 456, T2, 100 2 जा 100 3 जा। ओके, अभी आप सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मेरे को और भी सम्स करने हैं। आप सिर्फ बेसिक क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो आपको लगे कि कैंसिल हो रहे उसको स्ट्रेट स्ट्रेट आप कट डाउन कर लो। ठीक है, तो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। So right now okay, right now we are going to do the 19th sum. They have written the volume as 2500 centimeter cube. Okay, and they have said that you have to take it as the constant at STP लेना है। तो STP में मैंने आपको क्या बोला है? एक फिक्स्ड वैल्यू है, प्रेशर भी एक फिक्स वैल्यू है। ओके, अभी आपको बोला है द प्रेशर ऑफ दिस गैस इज इंक्रीज बाय, ओके, इंक्रीज बाय मतलब क्या बोला है? 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स से इंक्रीज किया है, 2.5 टाइम्स से ये प्रेशर वन को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो पहले मैं इसको बनाऊंगा 5.2 मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। दिस इज 760, दिस इज 380, वन जा, दिस वुड बी 1900। बट इंक्रीज बाय का मतलब क्या होता है कि 1900 से बड़ा, तो मतलब क्या था कि प्रेशर 2 कितना हुआ मालूम है? प्रेशर 1 प्लस इंक्रीज कितने से हुआ? 1900 से। तो व्हाट वुड बी द न्यू प्रेशर देन? 760 तो होगा, प्लस उसने 1900 से बढ़ा दिया, तो दैट वुड बी दिस पार्ट। ओके, नाउ दे हैव सेड यू हैव टू टेक टेम्परेचर एज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब भी तो 273 ही होता है। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम 2। नाउ as the temperatures, if you are going to notice 273, तो मतलब ये दोनों चीज कांस्टेंट ही है। ओके, तो यू कैन यूज योर बॉयल्स लॉ। ओके, बॉयल्स लॉ से आप सम कर सकते हो, क्योंकि उधर क्लियरली मेंशन्ड है टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर आपको वर्ड एसटीपी भी दिया तो भी यूज 273, अगर आपको टेम्परेचर में वर्ड कांस्टेंट भी दिया टेक इट एज 273 देन। ओके, just use the Boyle's law formula, you could get your answer. P1 V1 equals to P2 V2। ये 2.5 को मैंने 5.2 मल्टीप्लाई बाय दी ओरिजिनल 1900, तो P2 क्या हुआ? P1 तो रह गई, और कितने से इंक्रीज हुआ? 1900 से इंक्रीज हुआ।
Okay, now 21 sum. So I am doing my last sum, that is the 27th sum. Now they are given a LPG cylinder can withstand a pressure of 14.9, मतलब इसकी कैपेसिटी है 14.9 ATM. ओके, एटमॉस्फेयर दिया या एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है तो टेक इट एज अ ATM ओनली. The pressure of the gauge of the cylinder indicates 12 ATM. Okay, 12 ATM, and the temperature of this part is set to be T2 set to be 27 degrees Celsius. Due to a certain fire in the building, the temperature rises. तो बेसिकली ये क्या है सम कि एक सिलेंडर है, ओके, कैन विथस्टैंड अ प्रेशर, मतलब ये इतनी कैपेसिटी तक का प्रेशर झेल सकता है. लेकिन अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज कर दूं, ओके, तो ये लोग बोल रहे हैं अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो हमको तो थोड़ा रिलेशन मालूम है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. इफ यू आर गोइंग टू डिक्रीज योर प्रेशर्स तो कॉमन सेंस की बात है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, योर टेम्परेचर वुड इंक्रीज, मतलब एक फैक्टर नीचे आएगा और दूसरा फैक्टर ऊपर जाएगा. एक्चुअल में आपको ऐसा नोट डाउन करना है कि दिस इज द सेकंड इंफॉर्मेशन एंड दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन. ओके, दिस वाज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन कि ये बोल रहे हैं कि ये इतने तक कैपेसिटी झेल सकता है. ओके, अगर इतना एटीएम मतलब ये प्रेशर इतने डिग्री सेल्सियस पे काम कर सकता है तो ये प्रेशर कितने टेम्परेचर पे काम करेगा. तो मतलब क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक सिलेंडर की कैपेसिटी, एक कांस्टेंट कैपेसिटी कि वो 14.9 तक वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है. लेकिन अगर तुम लोग प्रेशर में कुछ चेंजेस करते हो तो डेफिनेटली टेम्परेचर भी चेंज आएगा. अगर प्रेशर नीचे जा रहा है, नोटिस करो नीचे जा रहा है, तो टेम्परेचर राइज होगा. मतलब व्हाट वुड बी द रिलेशन प्रेशर एंड टेम्परेचर, इफ द प्रेशर इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीजेस and if it decreases it has to increase. तो if you notice कि this was the first condition as I already mentioned, तो मैंने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया तो टेम्परेचर भी अच्छा खासा हो जाएगा अभी. ओके, प्रेशर इंक्रीज किया मतलब टेम्परेचर डिक्रीज में आंसर आएगा. अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सबके बाद. नाउ दिस इज अराउंड 300 केल्विन. ओके, नाउ दिस इज अराउंड 300 केल्विन. Just use your C. Atmospheric pressure. Okay. Now, what would be the volume then? ये क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं दिया और वॉल्यूम रिलेटेड सम्स ऐसा कोई भी चीज मतलब ऐसा कोई भी लॉ नहीं जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहे. तो अभी हम लोग V2 क्या लेंगे और V1 क्या लेंगे. V2 and V1 are both at the same. Why they are same? Because वो गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो मतलब वो बेसिकली वो सेम चीजों की बात कर रहे हैं उधर. तो उन लोग का मतलब क्या है कि अगर मैं वॉल्यूम को अफेक्ट नहीं करूं, मतलब ये जो भी वॉल्यूम है वो ऐसे ही है, दोनों सेम वॉल्यूम पे ही है, दोनों इक्वलाइज पे ही है. सिर्फ हम लोग को प्रेशर और टेम्परेचर का खेल बताओ कि क्या होगा आपके प्रेशर और टेम्परेचर में. वॉल्यूम इज सेम इन बोथ द केसेस. सी, वॉल्यूम इज सेम इन बोथ द केसेस. जस्ट अंडरस्टैंड दिस पार्ट. उधर वर्ड कांस्टेंट तो लिखा नहीं है लेकिन आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि वो लोग सिर्फ सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया है. ये सिलेंडर है और ये भी सिलेंडर है. अगर ये सिलेंडर ये सिलेंडर, जैसे कि एक कोई भी बॉटल, पानी का बॉटल होता है, ठीक है. बेसिकली कोई भी पानी का अगर मैं बॉटल की बात करूं तो बेसिकली इसमें अगर 1 लीटर की कैपेसिटी है, 1 लीटर ऑफ वाटर आई कैन फिल, तो सेम बॉटल उतना ही शरबत भी भर सकती है. 1 लीटर कैपेसिटी इंक्रीज तो नहीं हो रही है ना. 1 लीटर वाटर भरूं इसमें या 1 लीटर शरबत भरूं, जूस भरूं, जो चाहिए वो, द वॉल्यूम इज नॉट गोइंग टू चेंज, राइट. तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट इन दिस केस बट दे हैवंट मेंशन्ड, so you can take it as both of the v's are equal. Now simply use P1 V1 ideal gas equation.
Now this v and this v will get cancelled. Just cross multiply and get your answers. Just cross multiply and you can get your answers. Seven, 4, 74.5 एंड आप इसमें -200 डिग्री सॉरी -273 करोगे तो आपको आंसर आपके नॉर्मल वो भी आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में भी आ जाएगा। ये सिर्फ एक कन्वर्जन रेट है, तो आप सिर्फ वो नॉर्मल कन्वर्ट कर लो और आपका सम्स का आंसर्स खत्म। ओके, तो आई एम एंडिंग अप माय लेक्चर्स आउट हियर। तो बेसिक कैलकुलेशंस वर देयर, तो आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माय चैप्टर बिफोर आल्सो एंड नाउ आल्सो इन द रिविजन्स वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द डिफिकल्ट सम्स ओनली। Thank you, students.